Hello everyone, welcome to another video. In this video, we're going to talk about air and water. They're relatively easy chapters. It's just a cluttering of some information that you really need to grab, and there's not much conceptual things going on here, so it's just easy to absorb. The first thing is that you need to understand the composition of air, that it contains 78% nitrogen and around 21% oxygen, and there are greater than 1% other gases which may contain argon. Okay, you should remember argon because they might ask that which of the noble gases is greatest in amount as far as air is concerned, so we'll have to write argon. And there's some carbon dioxide in it as well, but the major component of air is nitrogen, and then we have oxygen. So we talked about the natural composition of air, but there are many pollutants in the air currently because we as humans have polluted air in a significant manner. So there are some pollutants that you need to know. There is carbon dioxide, which is an obviously greater amount than what God meant to be. So we have carbon dioxide, and then we have carbon monoxide. I'm talking about major pollutants here. You have carbon monoxide and you have methane. You need to remember these pollutants, where they come from and what are their impacts. There are some nitrogen oxides, let's call them NOxes. They are nitrogen oxides, can be nitrogen monoxide, can be nitrogen dioxide. Okay, then you have sulfur dioxide, SO2. So what are the sources of carbon dioxide? From where carbon dioxide comes from? It comes from complete combustion of carbon containing fuels. It comes from combustion. And when we talk about combustion, I'm talking about complete combustion here. Combustion of organic fuels like petrol, gasoline, and even methane. Combustion of organic fuels. And where does carbon monoxide come from? It comes from incomplete combustion of organic fuels. Comes from incomplete combustion. आपको पता होना चाहिए because you have done organic now. Then methane comes from decomposition of vegetation matter. Decomposition, जो गल सड़ जाती हैं चीजें, जो लिविंग चीजें जो गल सड़ जाती हैं, वहां से निकलती है मीथेन. Decomposition of vegetation matter. इसके अलावा cow burps are also responsible for methane. Cows जो burp लेती हैं, it also release methane. Then you have nitrogen oxides. Nitrogen oxides mainly come from internal combustion engines. कार के engine से निकलती हैं. Because कार में जब combustion chamber में burning हो रही होती है, तो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट बनता है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है. सो नाइट्रोजन एक्चुअली बर्न्स इन एयर. इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. Then you have sulfur dioxide. It also comes from combustion of fossil fuels. तो ये पहले ही बता दूं ना, ये कार इंजन से भी आती है और ये लाइटनिंग एक्टिविटी से भी आती है. You should know about the lightning activities. Okay. तो सिंस एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, जब लाइटनिंग होती है, हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सारी ऐड करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है. देन सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इट कम्स फ्रॉम अगेन combustion of fuel in car engines. combustion से आती है ये भी. combustion of fossil fuels. कुछ fossil fuels होते हैं जिनमें सल्फर होता है, वहां से आती है. और इसके अलावा ये वोल्केनिक इरप्शन से भी आती है. वोल्केनिक इरप्शन. ये नॉक्सेस और SO2, इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं एसिड रेन. ये एसिड रेन कॉज करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. मीथेन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से एक मेजर इम्पैक्ट क्या आ रहा है? क्लाइमेट चेंज. This is mostly general information, and आप अपना सिलेबस खुद ही एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल गेट द आंसर्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट ये यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सी चीजें समराइज हो गई.
कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, which leads to climate change. I hope you know what global warming is. Even if you don't, we'll be discussing it in this video anyway. So now let's talk about global warming and how exactly is it happening. देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना 19th सेंचुरी में, 1850s के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा एमिशंस बढ़ी थी। ठीक है, जब एमिशंस बढ़ी थी तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हुई थी। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ये करती हैं कि वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आती हैं, जो कि आने के बाद वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, यानी कि जो हीट सन से आ रही होती है, वो हीट जो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं, which have caused an increase in temperature of अर्थ का ओवरऑल इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली, बिकॉज आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर रही हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों बढ़ रहा है? जितनी ज्यादा आप गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगे, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज, राइट? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इट इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, ये कैसे क्या करती हैं? ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं गैसेस, जो सन से जो हीट आती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, बट रिफ्लेक्ट नहीं करती, यानी कि इमिट नहीं करती, वापस नहीं भेजती स्पेस में, जिसकी वजह से आपकी हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ पे। बस इतनी सी गेम है, इतना सा बेसिक से आपको पता होना चाहिए, एंड इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। और ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। Now let's move on to how can we exactly reduce the impact of greenhouse gases। और जो दो मेजर चीजें इस टाइम पे दुनिया में हो रही हैं, वन इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। जो मेजर चीजें दो दुनिया में हो रही हैं जिनसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है एसिड रेन। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग इटसेल्फ क्या है? क्लाइमेट चेंज ही तो है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है दुनिया का, जिस वजह से आपके फ्लड्स भी आ रहे हैं, आपके ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके। क्लाइमेट चेंज के को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ चीजें इसकी पता होनी चाहिए। यू कैन प्लांट मोर ट्रीज, सो कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी रिलीज हो रही है, ट्रीज उसको यूज कर लें। ठीक है, आप फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस करें, reduce fossil fuel consumption। I know I'm writing with too bold a marker, but मैंने start कर लिया तो I'm just going with it। आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। फॉसिल फ्यूल्स को यूजुअली हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो आप रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करें एनर्जी के लिए, सोलर यूज करें, हाइड्रो यूज करें, यू डू दैट। ओके, दूसरी चीज है एसिड रेन। एसिड रेन एग्जैक्टली होता है क्या? ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एयर में होते हैं ना, ये पानी के अंदर अब्जॉर्ब होके एसिड्स बना देते हैं, राइट? ये HNO3 बना देता है। जैसे SO3 है अगर एयर के अंदर, तो वो पानी एटमॉस्फेयर में से पानी लेके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, तो दे फॉल, बाकायदा इसकी रेन होती है। ठीक है, इवन एटमॉस्फेयर से भी ले सकते हैं। और जो गैसेस आपकी एयर के अंदर होती हैं, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज में ये डिसॉल्व हो जाती हैं, तो आपकी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको एसिडिक कर देती हैं। ठीक है, तो फिर एसिड रेन कैन एक्चुअली एसिडिफाई योर वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड रिवर्स, एंड इट एंडेंजर्स योर एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो ये आ कहाँ से रही होती हैं? दोनों जो है ना, ये कंबस्टन इंजन से आ रही होती हैं, कार्स वगैरह से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, सल्फर के ऑक्साइड्स भी। ठीक है, सबसे पहले तो भैया आप जो कार्स आपकी होती हैं उनमें आप कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करें। वो वाली कार्स लें जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि
हमारे पास जो एग्जॉस्ट होता है कार्स का, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और साथ में बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ऑलमोस्ट नियर टू हार्मलेस गैस बन जाती है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में, विच इज अ हार्मलेस गैस, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल अ ग्रीन हाउस गैस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड से कम टॉक्सिक है। तो आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करें ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एटलीस्ट कम प्रोड्यूस हो। इसकी वजह से एसिड रेन भी आपकी कम होगी। इसके अलावा ये तो नाइट्रोजन को कवर कर लिया हमने यहाँ से। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज एसिड रेन जो कॉज करती है वो सल्फर के ऑक्साइड्स है। SO3, SO2 पानी में डालो उससे भी एसिड बन जाता है। दैट इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस, ROUS, ठीक है। तो देखो, जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्रीज का एग्जॉस्ट होता है ना, उसमें उसमें जो है वो अक्सर जो है उस बहुत सारा सल्फर होता है। तो हम उस एग्जॉस्ट की डीसल्फराइजेशन करते हैं। वी कॉल इट डीसल्फराइजेशन। और कैसे करते हैं? हम कैल्शियम ऑक्साइड के करते हैं। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं हम डीसल्फराइज करने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम इज यूज टू डीसल्फराइज फ्लू गैसेस, ठीक है। जब आप फ्लू गैसेस को डीसल्फराइज कर देते हैं, यानी कि सल्फर उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एयर के अंदर सल्फर कंटेंट कम हो जाएगा, उनके ऑक्साइड्स कम हो जाएंगे, तो एसिड रेन कम कॉज होगी, ठीक है। तो दिस वाज एयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाटर। अच्छा, बल्कि वाटर स्टार्ट करने से पहले हम जरा कैटालिटिक कन्वर्टर फर्दर डिस्कस कर लें थोड़ा सा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है लाइक आई टोल्ड यू, और उसमें और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन में। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन में, ठीक है। बेसिकली हम इसको एक प्लैटिनम कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगा होता है। अगर आपने शायद अपनी कार्स, अगर आप लोगों के पास 1.3 1.5 सीसी कोरोला या सिविक वगैरह होंगे ना, तो उसमें पीछे स्टिकर लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। वो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगा होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली रिएक्शन होता है और आपसे वो पूछ भी लेता है व्हाई दिस रिएक्शन इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप सिंपल वे में उसको ये बता दो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। So this is getting oxidized and nitrogen monoxide is getting reduced, ठीक है, and this is getting oxidized. So it's a redox reaction. You should know that. अच्छा, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। अब बेनिफिशियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसमें, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, एक्वेटिक लाइफ के लिए सॉरी बहुत अच्छी होती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है आपकी। कुछ असेंशियल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई यू ड्रिंक मिनरल वाटर, मिनरल्स होते हैं। और हार्मफुल चीजें क्या हो सकती हैं? हार्मफुल चीजें आपके कुछ टॉक्सिक कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक हो सकते हैं। दे कैन बी माइक्रो प्लास्टिक्स एंड स्टफ। देयर कैन बी सीवेज, ठीक है, सीवेज के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपके जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे कैन कम इनटू वाटर, जिस तरह नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं। There is nitrates and there are even phosphates. Nitrates and phosphates होते हैं, ठीक है। यू शुड नो कि स्पेशली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जो है एक चीज कॉज करते हैं, एक प्रॉब्लम कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? यूट्रोफिकेशन बेसिकली हम कहते हैं कि ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से ना आपकी जो वाटर है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इससे वाटर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इट मेक्स वाटर डीऑक्सीजनेटेड, वाटर डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि होता ये है कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स के जाने से पानी में ये एल्गाई वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, और जब वो डीकम्पोज वगैरह भी होते हैं ना, तो वो माइक्रोब्स ऑक्सीजन ले जाते हैं पानी की, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपकी एक्वेटिक लाइफ इन डेंजर हो जाती है।
यूट्रोफिकेशन यहाँ तक आपको बस पता होनी चाहिए. इससे पहले प्रीवियस सिलेबस में आपको ज़्यादा डिटेल जब पूछते थे, बट अब फिलहाल आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में ये पता होना चाहिए कि वाटर डीऑक्सीजनेट हो जाता है. दैट इंडेंजर्स एक्वेटिक लाइफ. दैट इंडेंजर्स एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, तो दिस इज यूट्रोफिकेशन. बाकी जो है वाटर के अंदर हमने जो प्योरीफाई करना होता है वाटर को, तो 3 स्टेप्स में करते हैं. जो डाउनस्ट्रीम पे पानी आ रहा है उसको 3 स्टेप्स में उसको प्योरीफाई करते हैं. पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन. ठीक है, आप फिल्टर कर लेते हो, जो भी पार्टिकल्स होते हैं बड़े छोटे वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं. फिल्ट्रेशन इज डन टू रिमूव सॉलिड्स. इज नॉट मच, इज जस्ट कॉमन सेंस स्टफ. बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं. पहला स्टेप ये होता है कि आप फिल्टर कर लेते हो. दूसरा स्टेप होता है कि आप इसमें डीओडोरेशन करते हो, या आप क्या कह सकते हो इसमें कि आप यू ऐड कार्बन. आई डोंट नो हाउ, इसका कोई नाम नहीं है स्टेप का, लेकिन ये है कि डीओडोरेशन कह सकते हो आप. स्मेल और बुरी स्मेल पानी की, आप बुरा टेस्ट खत्म करने के लिए ऐड कार्बन. और चारकोल भी कह सकते हो. चारकोल इज अ टाइप ऑफ कार्बन. तो ऐड कार्बन टू रिमूव बैड टेस्ट एंड ओडर. दूसरे स्टेप में आप ये रिमूव कर लेते हो. जो तीसरा स्टेप होता है उसमें आप बैक्टीरिया वगैरह खत्म करते हो, जिसको हम क्लोरिनेशन कहते हैं. ये तीन स्टेप्स में हम बेसिकली वाटर को प्योरीफाई करते हैं. क्लोरिनेशन इज डन टू किल बैक्टीरिया. देयर यू गो. ठीक है, इसमें जो है वो और फर्दर चीजें आती हैं जो वाटर के अंदर, दैट इज एक्चुअली वी आर डन. इतनी ही चीजें आती हैं हमारे पास वाटर में, कि इनमें कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ डेंजरस होते हैं. और 3 स्टेप्स में हम इनको प्योरीफाई करते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड नो अबाउट यूट्रोफिकेशन. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर इन वाटर. Okay, let's talk about some past paper questions now. A new planet has been discovered and its atmosphere has been analyzed. So the atmosphere is the outer part and the planet is the inner part. The table shows the composition of the atmosphere. It has more carbon dioxide than on the planet, and it has less nitrogen and it has more oxygen. So which gases are present in the atmosphere of the planet in a higher percentage than they are in the Earth's atmosphere? Clearly atmosphere में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में है, ए और बी में से एक होगा. और ऑक्सीजन भी ज्यादा अमाउंट में. ऑक्सीजन इज 21% ऑन द प्लैनेट. तो आंसर वुड बी ए. आगे चलते हैं. सो question number 2, which statements are correct? Carbon monoxide is responsible for the production of acid rain. This is not correct. Oxides of nitrogen are present in car exhausts. That's true, but इसको हम बाद में कार एग्जॉस्ट में होती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलने देते हम. Sulfur dioxide can be produced by the combustion of fossil fuels. Yes, it can be. The 2 and 3 only. Which pollutant found in car exhaust fumes does not come from the fuel? So carbon monoxide comes from the incomplete combustion of fuels. So this won't be the answer. Fuels contain traces of lead compounds. So this cannot be your answer. Even nitrogen oxides come from the combustion chamber in the cars. So ये भी नहीं होगा. तो answer would be B. Elimination से कर सकते हैं हमें. Which compound in polluted air can damage stonework and kill trees? Stonework जो है ना बेसिकली एसिड रेन डैमेज करती है. तो एसिड रेन कौन कॉज करते हैं इनमें से? सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, व्हाट इज X? X इज लाइक इट इज कवरिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम ना. तो X जो होगा वो आपकी सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है आपकी एयर में? दैट इज नाइट्रोजन. Which processes are used to remove solid impurities and bacteria? The solid impurities are removed by filtration and bacteria is removed by chlorination. Answer would be C. The next question is, the diagram shows an experiment to investigate how paint affects the rusting of iron. So P के अंदर उसने आयरन डाला है, बट इसमें पेंट नहीं हुआ, और Q में पेंटेड आयरन डाला है. तो यहाँ पे रस्टिंग होगी. रस्टिंग होती है बेसिकली आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन होती है.
तो उसको इन्वर्ट किया हुआ है, नीचे वाटर है, तो इसमें जितना वॉल्यूम एयर का होगा उतना ही रहना है, राइट। अब जब ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाएगी और आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, विच इन अदर वर्ड्स इज रस्ट, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा पी में। क्यू में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि क्यू पे पेंट है आयरन के ऊपर, तो आयरन कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ऑक्सीजन के। तो पी में जब ऑक्सीजन कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी तो वॉल्यूम यहाँ पे एयर का कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे वाटर की स्पेस बनना शुरू हो जाएगी, तो वाटर लेवल यहाँ पे राइज करेगा, बट क्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर वुड बी डी। Which statements about water are correct? Water is treated with chlorine to kill bacteria. ठीक है. Household water may contain salts in solution. True. That's why it's called mineral water. Water is used in industry for cooling. That's true. Water for household use is filtered to remove soluble impurities. Filtration is done to remove insoluble impurities. So this is wrong. So the answer would be 1, 2, and 3. Okay. Separate samples of anhydrous and hydrated copper sulfate are heated, which shows the correct color changes. You should know कि ये हम टेस्ट यूज करते हैं to test for the presence of water. ठीक है, आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लें जो कि वाइट कलर का होता है. You should know this test. वाइट कलर का ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, अगर हम इसमें वाटर डालें तो वो ब्लू हो जाता है. तो बेसिकली if they ask you to write a test to test for the presence of water, you can simply say कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हम ऐड करेंगे and the color will change from white to blue. तो बेसिकली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू. तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टर्न्स टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ओके, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को उसने हीट किया. ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब है कि उसमें वाटर नहीं है. एनहाइड्रस का मतलब है सिंपल कॉपर सल्फेट को उसने हीट किया. ठीक है, तो नथिंग विल चेंज. ठीक है, नो चेंज. बट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को अगर वो हीट करेगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब है वाटर इज अटैच्ड टू इट. जब इसको हीट करोगे इसका वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इसका कलर ब्लू से वापस व्हाइट हो जाएगा. तो आंसर होगा इसका बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द डायग्राम शोज स्टेजेस इन प्रोड्यूसिंग ड्रिंकिंग वाटर इन विच टैंक इज क्लोरीन एडेड टू द वाटर. एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट टैंक में हम डालेंगे क्लोरीन बिकॉज इट इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया. The diagram shows a stage in the purification of dirty water. So dirty water है, then sand है, fine gravel and then coarse gravel है. Basically these are all filter mediums. These are all filter mediums. कुछ fine mediums हैं, कुछ coarse mediums and they're filter mediums. So this shows filtration. A catalytic converter removes harmful gases from motor car exhaust. Which reaction does not take place in the catalytic converter? मेजरली दो चीजें होती है कैटालिटिक कन्वर्टर में. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है. सो दिस हैपेंस, ए हैपेंस, दिस कैन नॉट बी योर आंसर. दिस डजंट हैपन, बी डजंट हैपन, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है. दिस डजंट हैपन. द इनवर्स ऑफ दिस इज हैपन. इफ दिस रिएक्शन इज रिटन दिस वे, दिस वुड हैव बीन करेक्ट. So question number 13, which gas is colorless and poisonous? When they say poisonous, it's mostly going to be carbon monoxide. Which gas in the air is needed for iron to rust? Iron की oxidation होती है when जब rusting हो रही होती है, so you need oxygen. Which pollutant gas cannot be produced by the combustion of fossil fuels? Carbon monoxide can be produced by combustion of fossil fuel. So this cannot be your answer. You have to choose one which cannot be produced. Methane cannot be produced by combustion of fossil fuels. Methane को तो खुद combust करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. State are used for each of the following gases. Chlorine is used for to kill bacteria in water. To kill bacteria in water. Argon is used in light bulbs. Ethene is used to make polyethylene bags वगैरह में यूज होता है बाद में. Oxygen is used in welding. Acetylene flame जो होता है, acetylene flame. Describe how oxygen is obtained from air.
Oxygen is obtained from air by fractional distillation. You will write the full sentence. I'm just writing the bullet points. It is obtained by fractional distillation. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले. First you will liquefy it. First you will liquefy, then you will heat, and oxygen will be obtained according to its boiling point. Okay. Clean dry air contains mainly nitrogen and oxygen. Name two other gases that are in clean dry air. Nitrogen, oxygen के अलावा there is carbon dioxide. Do not write formulas here. When they say name, please write names. And when they ask for formulas, then write formulas. You have carbon dioxide and argon. You have to write gases other than nitrogen and oxygen. Identify three common gaseous pollutants in air and state how each of these pollutants are produced. So let's start with carbon monoxide. Carbon monoxide is produced by incomplete combustion of organic fuels. Organic fuels कह सकते हो या fossil fuels कह दो. Or this, then you can write carbon dioxide, and you will write here that it is produced by complete combustion of organic fuels. And third, you can write nitrogen oxide or sulfur dioxide. लिख दो sulfur dioxide. You can say that it is produced by combustion of fuels, and then you can also write that it is produced by volcanic eruptions. This is shorter, so I'm writing volcanic eruptions. Right? नीचे है कोई question? No. Describe how carbon dioxide and carbon monoxide are formed in motor vehicle engines. So carbon dioxide is formed by complete combustion of the fuel, and carbon monoxide is formed by incomplete combustion of the fuel in the car. So I'm not going to write it. We have done this before as well. State one adverse effect of these gases. So carbon dioxide causes global warming. So carbon dioxide का क्या होगा? It causes global warming since it's a greenhouse gas. And the carbon monoxide है, this is a toxic gas. It's a toxic. Yeah, you can say it's poisonous. It causes respiratory issues. Respiratory issues cause करती है. Okay, explain how nitrogen monoxide is formed in motor vehicle engines. So basically, nitrogen reacts with oxygen. Nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen oxide as engine is a high temperature environment. Is a high temperature environment. Describe a chemical test which shows the presence of water. तो hydrated copper sulfate वाला मैंने already बता दिया आपको. There's another test. So you can use a cobalt chloride paper. You can use a cobalt chloride paper. और अब if water is present तो blue cobalt chloride pink हो जाता है. तो कलर चेंज क्या होता है? Blue to pink. B part है, how could you show that a sample of water is pure? If a substance is pure, it would have fixed melting and boiling points. So you can say that water will boil at 100 or it will freeze at 0. Melting and boiling points. Describe how water is treated before it is supplied to homes and industry. So you will filter, you will add carbon, you will add chlorine. And obviously you will explain it a bit more. That you will filter the water to remove soluble solids, and then you will add carbon to remove bad taste and odors, and then you will add chlorine to remove
to kill bacteria or to remove bacteria. State 2 industrial uses of water, it is used in cooling, it is used as a raw material. And these are the type of questions that usually are tested in exams.